آئیے ہم اپنے مولا سے پوچھیں، ائمہ معصومین سے پوچھیں، امام حسین کی اتنی عظیم الشان قربانی کا مقصد کیا تھا؟ عزیزو، ہر زیارت میں مقصد بتایا گیا ہے۔ زیارت وارثہ اٹھا کے دیکھیں، زیارت عاشورہ اٹھا کر دیکھیں، کیا فرمایا؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ۔ مولا ایک مقصد آپ کا یہ ہے کہ نماز قائم ہو جائے اور زکوٰۃ قائم ہو جائے۔ دیکھیے، نماز پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ کیونکہ ہمارا موضوع بھی نماز پہ چل رہا تھا کہ نماز کے ذریعے سے معنویت بڑھتی ہے۔ مقصد مولا حسین کیا ہے؟ نماز پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے۔ قرآن نے یہی کہا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور مقصد حسین یہ ہے کہ نماز قائم ہو جائے، زکوٰۃ قائم ہو جائے۔ قائم ہونا کیا ہے؟ وہی مقصد ہے جو قرآن نے بتلایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اگر نماز قائم ہو جائے تو آپ کو ہر گناہ سے بچائے گی، ہر بے حیائی سے بچائے گی، ہر ظلم سے بچائے گی۔ لیکن نماز ہم پڑھ رہے ہیں، نماز ابھی قائم نہیں ہوئی ہے، اسی لیے ہم گناہ کر رہے ہیں۔ مولا حسین کا مقصد کیا ہے؟ کہ نماز قائم ہو جائے۔ اگر نماز قائم ہو جائے تو نمازی کبھی ظالم نہیں ہوگا، نمازی کبھی شرابی نہیں ہوگا، نمازی کبھی زانی نہیں ہوگا، نمازی کبھی فاسق نہیں ہوگا، کیونکہ ہم صرف نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی تک نماز قائم نہیں ہوئی ہے۔ اور نماز جب قائم ہو جائے تو ہم ہر گناہ سے بچ جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نماز جب قائم ہو جائے گی ہمارے اندر اسپریچولیٹی پاور آ جائے گی، اور یہ پاور ہمیں ہر گناہ سے بچا لے گا، ہر بے حیائی سے۔ نماز قائم کیسے ہوگی؟ آپ مسلسل سن رہے ہیں، ہم جب توجہ سے پڑھیں گے، فوکس سے پڑھیں گے، معنی کو سمجھ کے پڑھیں گے، اور یہ سمجھیں گے یہ ہمارے زندگی کی آخری نماز ہے، یعنی 2 رکعت نماز میں ادھر ادھر کا خیال نہ آئے۔ بس کیا بات یہاں ختم ہو گئی؟ نہیں، اس کے آگے یہ ہے کہ یہی خیال آپ نے جو کنٹرول کیا نماز میں کہ آپ خدا کی دربار میں ہیں۔ بھئی مسجد میں بھی خدا کی دربار ہے، امام بارگاہ میں بھی خدا کی دربار ہے، بازار میں جاتے ہیں وہاں بھی خدا کی دربار ہے، آفس میں آپ کام رہے وہاں بھی خدا دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ نماز اب قائم ہو گئی کہ ہم جہاں بھی جائیں یہ فکر ہو، یہ تصور ہو کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ صرف خدا نہیں دیکھ رہا، رسول خدا شاہد ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، پنجتن پاک بھی دیکھ رہے ہیں، 14 معصومین ہمارے اعمال پر شاہد ہیں۔ یعنی جب ہم گناہ کرتے ہیں صرف خدا کی توہین نہیں کرتے، خدا کی بھی توہین کرتے ہیں، پنجتن کی بھی توہین کرتے ہیں، 4 معصومین کے سامنے گناہ کرتے ہیں۔ نماز قائم ہونا، جہاں بھی ہم چلے جائیں ہم خدا کے سامنے ہیں، امام زمانہ کے سامنے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ ہے نماز قائم کرنا، جسے ہم اپنی زبان میں، اخلاق میں، عرفان میں کہتے ہیں مراقبہ۔ اے انسان، اگر مراقبہ تیرے اندر آ جائے معنویت ہزاروں لاکھوں مرتبہ بڑھ جائے گی۔ مراقبہ، یا انسان غافل ہے یا انسان اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ نماز قائم ہونا یعنی ہمیشہ ذکر خدا میں رہیں۔ ضروری نہیں کہ زبان ہلے، لیکن خیال یہی رہے کہ میں خدا کی دربار میں ہوں، تو آپ ذکر خدا میں ہیں، آپ دائم الذکر میں مشغول رہیں۔ عزیزان گرامی، جب انسان ہمیشہ خود کو خدا کی دربار میں سمجھے گا تو با ادب ہو جائے گا، بے ادبی نہیں کرے گا۔ گناہ بے ادبی ہے، ظلم بے ادبی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایک نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر دشمنان اہل البیت۔ آپ خوشنودی امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ آج مولا حسین کو کہنا لبیک یا حسین،
यानी मौला मैंने नमाज कायम की है, पहले नमाज पढ़ता था, आज नमाज कायम करने का वादा करना है। मौला मैंने नमाज को कायम करना है, नमाज तो मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूं, लेकिन गुनाह इसलिए हो रहा है कि नमाज अभी कायम नहीं हुई है। अकीमुस सलात, नमाज कायम करो। अशहदु अन्नका कद अकमत सलात, नमाज कायम करो। नमाज कायम कब होगी? जब मुराकिबा सीखेंगे। मुराकिबा क्या है? तवज्जो, अटेंशन, तवज्जो, फोकस, अटेंशन। वो क्या है? मिसाल देते उलमा, देखो भाई आपके जेब में सांप हो, डब्बिया में बंद हो, एक डब्बी नहीं 5-6 डब्बी आपके जेब में सांप है, अब क्या आप गाफिल हो जाएंगे सांप से? हरगिज नहीं। कोई अक्लमंद आदमी सांप से गाफिल नहीं होगा। ये कमबख्त निकल के मुझे मार न दे, सांप है, दुश्मन है। कुरान कहता है सांप से बड़ा दुश्मन तेरा नफ्स अम्मारा है। इन्ना नफ्सल अम्मारतुम बिस्सू। किसने यजीद को यजीद बनाया? नफ्से अम्मारा ने। किसने शिम्र को शिम्र बनाया? नफ्से अम्मारा ने। किसने हुरमला को हुरमला बनाया? पैदाइशी कोई हुरमला नहीं, पैदा होते हुए कोई शिम्र नहीं, ये नफ्से अम्मारा मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, आलिम के अंदर भी है, गैर आलिम के अंदर भी है, सबके अंदर ये नफ्से अम्मारा है। यानी ये सांप है, सांप, ये डसेगा अगर हम इससे गाफिल हो जाए। इसे कहते मुराकिबा। जब मुराकिबा होगा नमाज खड़ी हो जाएगी। कायम यानी खड़ी हुई नमाज। हमारी नमाज सोई हुई है, हम गीबत भी कर रहे हैं, हमें नहीं रोक रही, हम गुस्से में भी आ रहे हैं, हमें नहीं रोक रही। कायम करो नमाज को। जो खड़ी हो जाए नमाज, वो तुम्हें गुनाह से रोक लेगी, गुस्से से रोक लेगी, गीबत से रोक लेगी। वो कैसे होगा? मुराकिबा। मुराकिबा करो। ये नफ्स सबसे बड़ा दुश्मन है। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े आलिम अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई जो तफसीर अल मीज़ान लिखी है, या इमाम खुमैनी या उनके उस्ताद लिखते हैं, देखो ये सारी इबादतें क्या है? ये पानी देना है। किसको पानी दे रहे हैं? नमाज भी पानी देना है, रोजा भी पानी देना है। किसको पानी दे रहे हैं? जिक्र भी पानी देना। कहता है ये बीज जो है वो मुराकिबे का है। मुराकिबा यानी मैं खुदा के हुजूर में हूं, खुदा की दरबार में हूं। हमने बीज लगाया ही नहीं है तो फल कहां से मिलेगा? पहले बीज लगाएं। जब बीज लगेंगे, बीज क्या है? सारी इबादतों का बीज है मुराकिबा। नमाज क्यों पढ़ते? कुर्बतन इल्लल्लाह। रोजा क्यों रखते? कुर्बतन इल्लल्लाह। हज पे क्यों जाते? कुर्बतन इल्लल्लाह। यानी कुर्बे खुदा ये बीज है कि मैं खुद को खुदा की दरबार में समझूं। जब खुदा की दरबार में समझूंगा तो ये जिक्र से कभी पानी देता हूं, कभी कुरान से पानी देता हूं, कभी रोजे से पानी देता हूं, कभी दुआ से पानी देता हूं, तो मोहब्बत खुदा का एक मर्तबा दरख्त निकल आएगा और मेरी रूहानियत बढ़ जाएगी और मुझे गुनाह से बचा लेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये पहला मकसद है मौला हुसैन का। अशहदु अन्नका कद अकमत सलात। हमने कहा लब्बैक या हुसैन। सिर्फ मुख्तसर अपने मौजू की तरफ इशारा करूं, रूहानियत बढ़ाना हर मोमिन का फर्ज है। अगर हमारा दिल मुर्दा है, रूहानियत नहीं, थोड़ी परेशानी में हार्ट अटैक हो जाएगा, थोड़ी परेशानी में ब्रेन हेमरेज, क्योंकि नर्वस ब्रेकडाउन इस वक्त इसलिए है कि हम स्पिरिचुअल जीरो हैं। स्पिरिचुअल स्ट्रांग बने, उम्र 20 साल आपकी बढ़ जाएगी। स्पिरिचुअल स्ट्रांग बने, प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। अजीजों, बहुत सारे नुस्खे बताए। एक आज नुस्खा, हमेशा खुद को खुदा की दरबार में समझे। कोई भी जिक्र कर लें, कोई भी जिक्र कर लें जिससे ये आपको ख्यालों में खुदा की दरबार में हो। लेकिन ये जोशन कबीर में अल्लाह के 1000 नाम हैं, इनमें से 4 नाम सिलेक्ट कर लें, मौजूदा कर सकते हैं आप। मैंने ये नुस्खा बताया था कुवैत में, और एक गुज़श्ता साल, इस साल गया, लोग आए, उन्होंने बताया, मौलाना वाकई कमाल हो गया। 4 अल्लाह के नाम लेके अगर आप पढ़ेंगे इतनी ताकत मिलेगी। अगर रिज्क चाहते हैं तो 4 ऐसे नाम ले लें, या गनी, हाँ, या करीम, जो रिज्क से मुतल्लिक है। अगर सेहत चाहते, या शाफी, या काफी, या मुआफी। इस तरह से 4 नाम अल्लाह के जिक्र में सिलेक्ट करें, अपनी तबीयत के मुताबिक, अपनी डिमांड के मुताबिक। ये ऐसे दुआएं नहीं बताई, 1 साल इस पे अमल करके देखें, देखिए जो चाहेंगे वो मिल जाएगा, जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। ये मौजिज़ा है अहले बैत का। अल्लामा हिली के वालिद ने क्या किया? अल्लाह के 4 नाम लिए, 1.25 लाख मरतबा पढ़ा। किस नियत से? ताकि बनी अब्बास की हुकूमत तबाह हो जाए, और वो तबाह हो गई। आप सुपर पावर को तबाह कर सकते। अल्लाह के 4 नामों में इतनी ताकत है। छोटी छोटी मुश्किल में हम गिरफ्तार होते हैं, अल्लाह के नाम से फैज़ नहीं लेते। उन्होंने क्या जिक्र लिया था ये भी सुन लें। अल कादिरु, अल मुक्तदिरु, अल कवी, अल कायम। बूढ़े इंसान इस जिक्र को करें तो जवानी महसूस होगी। सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद।
अल्लाह के 4 नाम है। बूढ़े हजरात कमर में दर्द है, ये दर्द है, ये बस 7 आज़ा पाक होने चाहिए, किसी से बुग़्ज़ कीना ना होने चाहिए। जितने बूढ़े हैं 90 साल का बूढ़ा भी अगर इस जिक्र को करे तो बाप बन सकता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। इतनी ताकत है अल्लाह के जिक्र में, जवानी आ जाएगी। अल कादिरो, अल मुक्तदिरो, अल कवी, अल काइम। 4 अल्लाह के कोई नाम भी जोशन कबीर से ले लें, आप देखिए क्या इनकलाब आता है। ये सारे नुस्खे अहले बैत ने हमें बतलाए हैं, मगर हम गाफिल हैं। सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीज़ान के अल्लाह आपको आबाद शाद रखे। अल्लाह ने आपको बड़ी नेमतें दी। मैंने कहा हमारे अली दीना जैसे आलिम ने आपको दिया, आप प्रोजेक्ट चलाएं, पूरी दुनिया आपके पीछे लगेगी। IMI में 5000 डॉक्टर हैं, क्योंकि बहुत शहीद हुए, ये सब लोग अमेरिका चले गए, सारे ज्यादा पाकिस्तानी हैं। 5000 डॉक्टर हैं। गुज़श्ता साल 700 डॉक्टर आए थे मशहद में। ये सब इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। मैंने कहा था ये बेहतरीन जगह है। मुझसे पूछा, मैंने दारुस्सलाम बेहतरीन जगह है मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए, शिया मेडिकल कॉलेज। प्रेसिडेंट मेरा दोस्त है डॉक्टर शबी, वो तैयार है। 1-2 सरमाएदार तैयार हो जाए, अपने अस्पताल बनाए। अपने अजीज को एजुकेशन पे हम बिल्कुल पीछे हैं। मैंने कहा एजुकेशन में कभी लॉस नहीं होता, एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, क्योंकि तबलीग यानी एजुकेशन। ये गुलाम 70 बिलियन कमा सकता है एजुकेशन से, तो हमारे मोमिन क्यों नहीं कमा सकते। हर बिजनेस में अप डाउन होता है। इतने ग्रांट है। एक छोटा सा ड्राइवर ने ल्यूटन में स्कूल बनाया, गवर्नमेंट ने 4 मिलियन पाउंड उसे पैसा दिया। स्कूल की जरूरत है। खुद यूके में आप आइए, हम आपको पार्टनर देते हैं, गवर्नमेंट पैसा देती है। एजुकेशन हमारा मिशन होना चाहिए। एजुकेशन के जरिए से हम अमर बिल मारूफ कर सकते हैं। एजुकेशन के जरिए से हम मसीही ईसाइयों को बता सकते हैं। आप भी इमाम ज़माना का इंतजार कर रहे हैं। आपकी बाइबल में 80 मरतबा ये आयत है, When the son of man will come, whole world will be like heaven. Son of man आप कहते हैं, उसी शख्स को हम इमाम ज़माना कहते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी। अजीजों, आज ये दिन है इंशाअल्लाह। बस मैं आखिरी नुक्ता कि कैसे मानवियत बढ़े। मानवियत के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी। एक तवस्सुल अहले बैत, आपकी 0 से 1000 तक पहुंच जाएगी मानवियत, स्पिरिचुअलिटी। तवस्सुल हर रोज कोई तवस्सुल है, या दुआ तवस्सुल हर रोज पढ़ें, या ज़ियारत आशूरा बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। ज़ियारत आशूरा से मैंने बताया था मोजज़े हो जाते हैं। बंदा वहां गिरफ्तार था सऊदी में, मैंने बताया वो आजाद हो गया, उसकी हथकड़ी टूट गई। ये ज़ियारत आशूरा का पावर है। ज़ियारत वारसा या ज़ियारत जामिया, तवस्सुल हर रोज होना चाहिए। और दूसरी चीज खिदमत मखलूक खुदा। आप खुश नसीब हैं भाई, यूरोप में हम लोग साल भर पैसा जमा करते हैं, कोई फकीर नहीं मिलता। सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद। खिदमत मखलूक खुदा का मौका जितना आप लोगों को यूरोप वालों को नहीं है। देखिए खिदमत मखलूक खुदा से मानवियत बढ़ जाती है। हाँ, बाग तजुर्बा है। उलमा फरमाते देखो कोई दिन ऐसा ना गुजरे कि तुम किसी इंसान के काम ना आए, फिर तुम हैवान हो। इंसान वो जो किसी के काम आए। हाँ? हत्ता कि ये दरख्त भी अपने वजूद से हमें इतनी ऑक्सीजन देता है कि कई हजार लोगों की खुराक ऑक्सीजन एक दरख्त पूरी करता है। अगर हम किसी इंसान के काम नहीं आए तो हम तो दरख्त से भी गए गुजरे हैं। इंसान वो है जो किसी के काम आए। अगर कोई इंसान न मिला, किसी बिल्ली को खाना खिला दो, किसी के तुम्हारे वजूद से किसी को फायदा तो मिले। अजीजों, कब्र में ये चीज काम आने वाली है। अल्लामा मजलिसी के शागिर्द ने उसको ख्वाब में देखा, पूछा उस्ताद कब्र में किस चीज ने मदद दी? उसने सोचा लिखेंगे बहारुल अनवार, 100 जिल्द किताब लिखी इसने मदद। वो ये सोच रहा था, हाँ वो उसका सिला मिलेगा कहाँ? कयामत में। कब्र में क्या चीजें हैं? खिदमत मखलूक खुदा। अल्लामा मजलिसी ने कहा एक दिन सर्दी की रात थी, मैं नमाज पढ़ाने जा रहा था, 2-4 बच्चे थे बिल्ली के, वो थर थर कांप रहे थे। मैंने कहा अल्लामा तुम्हारे पास तो इतनी मोटी अबा है कंबल जैसी, ये बेचारे बच्चे थर थर कांप रहे हैं। मैंने अबा उतारी, उन बच्चों को उस अबा में लिखा। मुझे खुद भी सर्दी लग रही थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, और जाके एक महफूज जगह पे रखा। कहा बेटे इस चीज ने मेरी कब्र को बेहिश बना दिया। रहम 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 रहम, मखलूक खुदा पे रहम। खुदा फरमाता है कोई ये ना समझे नमाज पढ़ के मैं पुल सिरात से गुजर जाऊंगा या रोजा रख के मैं पुल सिरात से गुजर, फरमाया नहीं, रहम जिसके दिल में रहम होगा वो पुल सिरात से गुजर जाएगा। अजीजों, कितना अच्छा मौका है।
मडागास्कर से मैं आ रहा हूं, बड़ी खुशी हुई, 25,000 लोगों को शिया किया था। ये चंद साल ही तो उन्होंने शुरू किया है तबलीग पर, 25,000। अल्लाह अकबर। यहाँ गरीबों की मदद का भी मौका है, शिया करने का भी मौका है। मगर अस्पताल जिसे इन्होंने किया अस्पताल, अब आपके पास तिब्बे मासूमीन से आप मौजज़ा कर सकते हैं। ये फ्री कोर्स आप सब आके ले सकते हैं, जो भी बीमारी हो। 5 बीमारियों का इलाज हमारे हॉलैंड की यूनिवर्सिटी एलिया से फ्री है। आप यहां तबलीग करें। हर्बल मेडिसिन आज पूरी दुनिया में है। ये इमाम जाफर सादिक का नुस्खा है। अगर एक इंसान की जिंदगी बच जाएगी, वो 100% शिया हो जाएगा। हमारे पास सबूत है, पूरे दुनिया के डॉक्टरों ने इलाज कर दिया। ये मौजज़ात आप दिखा सकते हैं, गरीबों की मदद भी कर सकते हैं इन हर्बल मेडिसिन से। हर शिया को ये इल्म आना चाहिए। कितने लोग मुफ्त में मारे जा रहे हैं। बस बहुत अफसोस होता है, फुला मोमिन का हार्ट सर्जरी, अरे भाई क्यों? ये तो अहले बैत का नुस्खा था, 1 हफ्ते में आर्टरीज खुल जाती, क्यों इस बेचारे ने खुद को माजूर बना दिया? मेरा नंबर भी नोट कर ले, ईमेल भी। किसी को अगर हार्ट का प्रॉब्लम हो 1 हफ्ते में ठीक हो सकता है। कैंसर का मरीज, डायबिटीज का मरीज, ये अहले बैत के नुस्खे हैं। ये आपकी मीरास है, आपकी प्रॉपर्टी है। आप इससे बिजनेस करें, आप इससे तबलीग करें, पूरी दुनिया में नुस्खों को आम करें। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। यकीन। अब हमारे दोस्त